I'm just giving you a program that you need to do is just write a program to calculate the area of a rectangle. Okay, so using the data type that we have studied. Okay, try to calculate the area of circle, not rectangle, sorry, area of circle. Okay, try to calculate the area of circle. Can you do that? Can you write down the program for that? Do not write any functions in it. Just write the main function, and within main function just write down the variables that has been defined over there. Just calculate the area using some pi values or whatever the formula is, and then print the values as it is. As simple as that. Okay, can you write down that program? Can it be done? Do reply me fast, come on. Yes, sir. Okay, so Yes, do it sir. now. Come on, do it now. Do it now. Do it faster. Because it is practical oriented, right? So I also want to see whether you are able to understanding, or just I'm speaking on my behalf, but you're listening or you're not listening. I do not know. Okay, so whoever is writing can keep on showing me the screen. Okay, so you can present to the whole class what you're writing actually. So एक बंदा कोई यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है साथ में, ताकि मैं सिखा सकूं कि क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, वरना मैं अगर लिखते चला गया तो फिर आप देखते रहोगे एंड में. So basically, I also want you to write down the program and just show it to me or show it to the class so that even you can learn, even the whole class can learn from you. Can anybody can voluntarily do that? Can you guys do that? I'm still waiting for the reply. Nobody's replying me. Yes, sir. Okay, do it fast, come on. So the program that I said is write a program to calculate the area of circle. Okay, and print it. This is what I want to do. Okay, so प्रिंट करना है आपको एरिया का सर्कल करके कैलकुलेट करके और उसको प्रिंट करना है. एज सिंपल एज दैट. यू डू नॉट हैव टू यूज एनी फंक्शन, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग. ओके, जस्ट यू हैव टू प्रिंट इट. So can anybody share me your screen what you're actually writing on the program in your notepad? I will stop the presenting part. You can share it now. Okay, so should I start writing the program? What? Give me a suggestion how it should be done, because I do not see you guys writing the program. Should I keep on continuously writing the program? Will you be able to follow me up? कैसे करना है? Sir, revise us a bit. Sorry. Revise us a bit. Okay, okay, fine. So revise. Okay, I will just give you an example. I'm telling you to calculate the area of circle. I will do what? I will calculate the perimeter of a square. Okay, you have to do in the similar fashion only as it is. Okay, so the program that I will be doing is to calculate the area of a perimeter of a the calculate the perimeter of a rectangle, and I will just have to print it. Okay, so कैसे करना है? सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम जब आपको लिखना होता है, so what you do is first you need to give a create a class. Okay, so class is nothing but it is a creation, or it consists of a variable, it consists of methods, it consists of objects, etc. So it is nothing but it is a container basically. Okay, so उसके अंदर सारी की सारी चीजें उसी के अंदर होती है. Okay, so that is the overall container that we have. So I am creating a class by a name called as perimeter. Okay, तो मैंने perimeter नाम का एक class बनाया. Okay, better ये होगा कि whenever you are creating a class ना, the
the first letter of the class name that you have, it should be in capital. Okay? So ये एक तरीका है, convention. It is not like ऐसा कुछ रूल नहीं है जो आपको हमेशा फॉलो करना है. It is like एक कन्वेंशन है. Okay? अगर आप करोगे तो ज्यादा बेटर होगा. Okay? So class perimeter. I'm creating a perimeter by I'm creating a class called as perimeter. I'm starting the class and I'm ending it with the curly bracket. Within this curly braces, I would be writing down the definition or whatever the container class perimeter holds that has to be defined within this class. Okay. So since this is the class, I have to create a main function because that main function will be the starting point or the entry point of my program. Okay. So from that point, the program will get executed. So how to create the main function? आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए यहाँ पे मुझे? मेन फंक्शन कैसे क्रिएट करूंगा मैं? Public static void main. Okay, so I have to write down String public static void main. In bracket, I have to pass a parameter. So parameter is string args. सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है. Okay, sorry. Right. Okay. Okay, is it visible now? Yes sir. Okay, so I've got a class called as perimeter. In that perimeter, I'll be starting. Every class has to be started with a curly bracket, and it should be ended with a curly bracket. Within the curly bracket, the content should be either it should hold a variable, either it should hold a function, or it should hold an object. So that is what a class basically contains. Okay. So इसके अंदर I am creating the first the main method. Why we are creating a main method? Main method का मकसद क्या होता है create करने का? Because कोई भी प्रोग्राम को अगर आपको execute करना है, that execution always start from the main method. Okay, so we want to execute our program, right? We don't have to just write it down या फ्यूचर में कभी यूज करना है या उसको लेकर के कोई और प्रोग्राम को यूज करना है, ऐसा तो नहीं करना है. हमें एक क्लास बनाना है जिसका नाम पेरीमीटर है. उसके अंदर सीधा जो भी उसका लेंथ और ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का वो लेकर के बेसिकली हमें यूज करना है और उसका एक पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. ओके, सो ये इसको करने के लिए सबसे पहले हमें मेन मेथड बनाना है. तो मेन मेथड बनाने के लिए वी राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन and within parameter we pass a string argument. Okay, after doing that, method should also be defined within the curly bracket. Okay, so I'm starting a curly bracket, I'm closing a curly bracket. Within this I'll be defining the main method. Okay, so in the main method, first we need to define what are the different variables that will be required while using or while calculating the perimeter. So what are the variables that is required? कितने वेरिएबल लगेंगे पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए? Byte. Yeah, I can use byte, but what are the name of the variable? I'm asking about variables that is required, not data type. So कोई भी variables क्या होता है? What is a variable? What is length and breadth? What is variable exactly? Variable is Radius. What is variable? Can anybody tell me what is a variable? Identifier. No, identifier is a different thing. Okay. That part is still remaining. I have to explain you what is an identifier, but वो method खत्म होने के बाद I'll be explaining you what is an identifier. So variable is not variable are displayed or it is written down or explained through the identifier. But मैंने last time आपको variables बताया था. Variable is nothing but it is an alternate name given to a memory location. Okay. So कोई भी मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है या उसका एड्रेस होता है, वो एड्रेस उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ a binary number. Okay, या hexadecimal number से उसको आइडेंटिफाई कराया जाता है. Okay, so that hexadecimal number is a very large number. Okay, so if you are talking about, let's say अगर आपके मोबाइल फोन में if you have the maximum capacity of like आपका एक्सटर्नल अगर जो मेमोरी का साइज है, इफ इट इज लाइक 256 GB का, अगर मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ मैं, 256 GB का अगर आपका मोबाइल फोन होगा, दैट 256 GB, ईच एड्रेस ऑफ दैट 256 GB, हर एक जो बिट आप स्टोर करोगे, हर एक बाइट जो आप उसके अंदर स्टोर करोगे, वो बाइट का जो एड्रेस होगा, दैट इज 38 बाइट एड्रेस. ओके, सो 38 बिट का एड्रेस. सो 38 बिट का एड्रेस याद करना, इज इट डिफिकल्ट और इज इट इजी? You want to remember a 38-bit address? Is it difficult or is it easy? Difficult. It is difficult, right?
So instead of writing down that particular address, it would be better कि हम लोग उसका कोई alternate नाम दें. Okay, so that would be easier to us. Okay, so ये करने के लिए we use a variable. Okay, so ये point समझ में आया क्यों variable use करते हैं? Or you want me to elaborate that point? कि कैसे एड्रेस एक्चुअली कैसे वर्क करता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब कुछ बताना है आपको, इतना डिटेल में जाना है? You want me to go in detail? I can go in detail if you want me to. But that is not part of Java basically. You want me to go? No, sir. Okay, fine. So variable क्या है? Variable is nothing but it is an alternate name given to a memory location. So memory के अंदर जो location है जहाँ पे आप data store करते हो, because memory किस लिए use करते हैं ना? Memory हम लोग use करते हैं ताकि program और data को store कर सकें. Okay. So that is why we are creating a variable. So हमारे पास आपने बताया कि हमारे पास दो variable हमें लगेगा. One will be called as a length. Okay, so I'm creating a variable called as length, and I'm creating a variable called as breadth. Okay, so these are the two variables that are required, right? So ये दो वेरिएबल को बनाने के लिए ये दो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी जो आपको पास करना है वो कौन सी वैल्यू होगी उसका डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा. ओके, सो लेंथ कौन सा डेटा टाइप होगा, ब्रेड्थ कौन सा डेटा टाइप होगा, ये आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा. ओके, ताकि लेंथ को जो आप स्पेस दे सको वो उसका एक स्पेस या मेमोरी में कितनी जगह लेगा लेंथ या ब्रेड्थ कितनी जगह लेगा डेटा को स्टोर करने के लिए वो आपको बताना पड़ेगा प्रोसेसर को. सो कितने टाइप के डेटा टाइप हैं? How many data types are there in Java? 8. 8. So basically data types are basically divided into two different categories. One is called as a primitive data type and another one is called as a Non-primitive. non-primitive data types. So primitive data types are exactly 8 in number. Non-primitive data types are basically depends on the different class we have. Okay, so it is like infinite. Okay, so one of the non-primitive data type is basically a string. Okay, so अगर आपको string define करना है, string is a non-primitive data type. बट यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं. लेंथ कैन बी जनरली कैन बी इन इंटीजर फॉर्म, it can be in the form of byte also, it can be in the form of short also, it can be in the form of long as well, it can be a float, it can be double. It is up to you to decide कि आपको क्या रखना है. Okay, so I would be using integer. Okay, I'll be using integer. That would be much better option to me. So I'll be defining the first variable as having data type as integer. Okay, so integer है, इसके बाद मैं ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया. आई हैव डिफाइंड अ वेरिएबल, उसका डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया. अगर चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू भी देख सकते हो डायरेक्टली. सो लेट्स से मैं उसको वैल्यू पास कर रहा हूँ एंड आई एम पासिंग द वैल्यू एज 10. ओके, सो लेंथ इज इक्वल टू 10 राइट नाउ. So this is an instruction. I've assigned a value to a variable. यहाँ पे एक instruction खत्म हो चुका है. As soon as an instruction get over, I have to write down what? In order to end the instruction, what I need to write over here? Semicolon. Semicolon. So I'll be writing a semicolon over here. Okay. So in the same fashion, I have to create another variable over here. So this variable is nothing but a breadth. The name of the variable is breadth. But the processor will ask me how many memory space should be assigned to it. Okay. So ये मुझे बताना पड़ेगा उससे. So अगर मैंने byte दिया तो कितना memory इसको assign होगा? If I write data type as byte to breadth, how many memory space will be assigned to breadth? 8 bit. 8 bits. 8 bit. अगर मैंने short assign किया तो कितना assign होगा? If I assign short as a data type, it would be 16 bit. 16 bit. अगर integer assign किया तो मैंने, if I assign int, it would be 32. 32. So int breadth मैंने इसको assign किया. I have to assign the value as well. is ये क्या store करेगा उस 32 bit में? So I'll be let's say मैं इसको 20 दे दूँगा. Okay, I'm passing a value called as 20. Okay. Again, this is an instruction, so I'll be ending with semicolon. So I've passed these two values. I've got length, I've got breadth. Now I need to calculate the perimeter. So perimeter को मुझे calculate करना है. Okay, but calculate करके उसको store भी मुझे एक variable में करना पड़ेगा. So I have to create a variable for perimeter as well. Okay. So since all the calculation are done in integer, so naturally जो मेरा output होगा वो भी integer में होगा. Okay. So I'll be using int. I'll be using a data type called as int, and I'll be creating a variable called as by the name of perimeter. Okay, या peri बोल दो या जो भी आपको नाम देना है. So I'll be creating a variable called as peri. Okay, so this peri will be having some formulas. Okay, so it would be using the length, the breadth in order to calculate the value. Okay,
So what is the formula of perimeter? Can anybody tell me what is the formula? To length plus breadth. 2 into length plus breadth. Okay, so basically I can write down 2 twice. Okay, into, I'll be using length plus breadth. Okay, is the formula correct? The formula is correct, right? Yes, sir. Okay. So I need to again this value that has been assigned through a formula. That particular instruction is over. So I need to end this instruction with the help of a semicolon. So I've assigned a value to length. I've assigned the value to width. I've created a variable called as query, and I've assigned the value by assigning a formula to it. Okay. So ये formula के अंदर सारे variables is been defined. So there would be no error. Okay. So ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक अलग सा variable दे दिया और उसको मैंने define ही नहीं किया. अगर ऐसा किया होता तो there would be a error that has been induced. Okay, so it is done now. So I have calculated the perimeter. I need to print it. Okay, मुझे इसको print करना है. So how to print anything in Java? What is the command? System.out.println. Dot out dot print ln. Okay, ये मुझे print करना है. Okay, I'll just tell you कि मुझे output किस format में चाहिए. Okay, so you just tell me. Okay, so the format is I want the output to be printed as the perimeter of a rectangle having breadth is equal to 20 and length is equal to 10 is 20 plus 10 is 30, 32, 30 into 2 is 60. Is 60. This is what I want to print. Can you tell me what should be written in system.out.println? क्या लिखा जाएगा? इस तक सब सेम आएगा और प्लस पेरी आएगा. Okay, so basically ये मैं पूरा का पूरा as it is लिखूंगा यहाँ तक within inverted quotes. ये बोलना चाह रहे हो आप? यस. ओके. ये जो वैल्यू है ये मुझे यूजर से मतलब जो मैंने प्रोग्राम में से लेनी है. तो मैं कैसे ले सकता हूँ? हाउ आई कैन डू दैट? मैं एक तरीका बताता हूँ आपको. अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोट्स लिखा. इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा मैंने द पेरीमीटर ऑफ अ rectangle having breadth is equal to, ये as it is प्रिंट होगा. अब मुझे वो वैल्यू प्रिंट करानी है ब्रेथ की. ओके, तो मैंने तो यहाँ पे 20 लिखा. अगर मान लो अगर ये यूजर देता तो ये आपको पता नहीं होता यूजर क्या वैल्यू पास कर रहा है. यू वांट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड यू वांट टू प्रिंट इट. यूजर क्या सेलेक्ट कर रहा है बेसिकली. सो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा? यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ब्रेथ. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? प्लस एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. समझ में आया आपको? what they are doing over here? So till inverted quotes it would be copied as it is. After that we are printing the value of breadth. Okay, so whatever the value of breadth that the user has put into the breadth, that would be printed over here. So currently we as a program are the user, so we know what is the value. So we know the value is 20. Okay, but जब actually हम user से input मांगेंगे उस time पे हमें नहीं पता होगा ये चीज. So that is why हमें क्या convention follow करना पड़ेगा? Till they think that we know, वो सब inverted quotes में आ जाएगा. The value which we don't know, वो वाला पार्ट में आप क्या लिखोगे? प्लस लिख करके विदाउट इन्वर्टेड कोट्स में यू हैव टू पास द वेरिएबल. सो आई एम पासिंग अ वेरिएबल कॉल्ड एज स्प्रेड. ये वैल्यू पास हो गई. वैल्यू पास होने का अगेन आई विल परफॉर्म द प्लस ऑपरेटर. प्लस विल डू व्हाट? इट विल कॉन्कैटिनेट. ओके, सो आगे का पार्ट आप इसको जोड़ देगा. आगे क्या जोड़ना है मुझे? फिर से एक इन्वर्टेड कोट स्टार्ट करना है. ओके, आई हैव टू स्टार्ट द इन्वर्टेड कोट्स अगेन. विद इन द इन्वर्टेड कोट्स 20 तक. अब ये कहां तक कॉपी हो चुका होगा? कहां तक प्रिंट हो चुका होगा? यहां तक. आई प्रिंटेड टिल हियर. अब मुझे क्या करना है? एक स्पेस देना है. ओके, आई हैव टू गिव अ स्पेस. सो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक स्पेस दूंगा और लिखना चालू करूंगा. एंड
लेंथ इज इक्वल टू अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा यहाँ पे आगे प्लस द वैल्यू ऑफ द लेंथ. सो वैल्यू ऑफ द लेंथ इज व्हाट? प्लस लेंथ. समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं आपको? Yes. Okay. Yes, sir. So now I will be printing the value of the length. और ये प्रिंट करने के बाद अब क्या बच गया, मुझे क्या प्रिंट कराना है? इज प्रिंट कराना है. ओके, सो मैं क्या करूंगा, फिर से एक प्लस यहाँ पे डालूंगा. आई विल कॉन्कैटिनेट द नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन. सो आई विल बी यूजिंग प्लस अगेन, एंड वो इज को प्रिंट कराने के लिए आई विल बी अगेन यूजिंग द इन्वर्टेड कोट्स. So while printing is, I have to give again a space first, and then I'll be printing is. Okay. So is के बाद अब मुझे पेरीमीटर की वैल्यू प्रिंट करानी है. ओके ओके, सो मैं क्या करूंगा, आई विल बी पुटिंग अ प्लस, एंड पेरीमीटर की वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर्ड है? पेरी. सो आई विल बी राइटिंग पेरी over here, and since this instruction has been done, I have to put a semicolon over here. Okay, समझ में आया? Is it clear to you? Is it clear? Yes, sir. Okay, and I will be deleting this particular line, okay, because it is not part of the program. Now I will be saving the program. So for saving the program, what should be the name of the file? Variable names. Class name. Class name. So it should be by the Perimeter. name. Dot Java. It should be by the name of the main class. Main class is nothing but it is a class which has a main method in it. So main method वाली class कौन सी है? Perimeter. So I'll be using the term as perimeter. Okay, dot Java. मैं इसके नाम से इसको सेव कर लूंगा. I'll be saving it. Okay, प्रोग्राम सेव हो चुका है. अब मुझे क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है. सो कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज प्लस आर, आई विल बी राइटिंग cmd over here. Okay, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया. लास्ट टाइम हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया था. चेक करते हैं कि क्या ये अभी भी जावा सी को याद कर पा रहा है या भूल गए. ओके, I'll press enter. Yeah, it is remembering the Java C. So I don't have to set the path now. Okay. So everybody, environment variable have you set on your system? कर पाए आप या कुछ डिफिकल्टी है एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने में? Sir, difficulty आया. ओके ओके, सो कैसे करना है आई विल बी लेटिंग यू नो जैसे ये आपका लेक्चर खत्म हो जाता है. ओके, सो जिसको डिफिकल्टी आ रहा है ना, सो प्लीज डू लेट मी नो. तो मैं एक साथ जो बच गए हैं लास्ट में जब सब लीव करते क्लास, उस टाइम पे मैं आपको फटाफट 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे करना है. ओके ओके, सो अब मुझे क्या करना है, मुझे उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे मेरा पेरीमीटर करके प्रोग्राम सेव है. ओके, सो पेरीमीटर करके जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे सेट है? इट इज देयर इन डी ड्राइव. सो मैं डी ड्राइव में जाऊंगा. आई विल राइट डी कोलन एंड आई वुड प्रेस एंटर. सो अभी किधर हूँ मैं? डी ड्राइव में. Within D drive, there is a folder called as Java program. So I have to go into the Java program. So Java program में जाने के लिए I will just write J and I will press the tab button. So automatically it would take the Java program का folder का name. So I'll be going in that folder. यहाँ पे मुझे perimeter program को run करना है. Okay, so if you have not set the environment variable, आपको क्या करना पड़ेगा? You have to do what? You have to set the path. Path को set करने के लिए आप क्या लिखोगे? Path is equal to, you have to copy the address of your Java file which has been stored in C within program files within JDK within Java within JDK within bin. Okay, so that path should be copied over there and that has to be set over here. अगर आपने environment variable दिया है तो ये आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So मैं यहाँ पे environment मैंने डाला सेट किया हुआ है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा? I have to compile the program and check whether there is an error or there is no error. Okay. So compile करने के लिए this step is I have to do what? What is the step for compilation? Java C. Java C. Java C space. What should be written over here? Program name. File name. Program name or file name. So program name is perimeter. Okay, so I'll be writing P and I will press the tab button. Okay, so automatically it would include the perimeter.java. That is the name of the file that I've created. Okay, I'll just press the enter and I'll check it. Is there any error? No, there is no error. Okay, so अभी error नहीं है तो इसका मतलब I would have created a file name by perimeter.class. Okay, so I would have created a class file. So I will check it whether there is a file which has been created by the name of perimeter.class.
press dir. Dir is nothing but it is a directory. तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, there is a perimeter dot class. Okay, that is been created. Okay, so अब मैंने class file बना दिया है, मुझे इसको run करना है. In order to run it, what is the command for running the program या executing the program? The command is Java. Java space File name. space, not the file name, it is the name of the class. Okay, it is the name of the class. Okay, which has the main method. So अगर आप चाहो तो आप नाम अलग से सेव कर सकते हो. ओके, बट यहाँ पे जो है रन करने के लिए हमेशा आपको मेन क्लास का नाम देना पड़ेगा. ओके, सो मेन क्लास का नाम क्या था? पेरीमीटर, राइट? सो मैंने पेरीमीटर यहाँ पे डाला, मैं इसको रन करता हूँ. ओके, सो द आउटपुट दैट आई गॉट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20. ये जो यूजर से लिया था, दो हमने प्रोग्राम में डायरेक्टली डाल दिया था, इसलिए ऑटोमेटिकली 20 आ गया. एंड लेंथ इज इक्वल टू 10 इज 60. बराबर आया आउटपुट हमारा. इसी प्रोग्राम क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी मैंने ये जो पॉइंट बोला आपको कि जब रन करते हो, रन करने के टाइम पे आपको क्या करना है, जो क्लास नेम है वहां पे वो डालना, नॉट द फाइल नेम. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट आई वाज मेंट टू सेइंग. ओके, सो मैंने जब भी आपको प्रोग्राम जब लिखना सिखाया तो मैंने क्या बोला कि जो क्लास का नाम है उसी नाम से आप बेसिकली फाइल को सेव कर दो, राइट? एवरी टाइम यू सेव विद द सेम नेम ऑफ द नेम एज दैट ऑफ अ मेन क्लास. ऐसा जरूरी नहीं है. आप चाहो, मान लो अभी इस प्रोग्राम का नाम इज पेरीमीटर. I want to create a class called as perimeter 1. Okay, I'm creating a class called as perimeter 1. समझ में आ रहा है आप सबको क्या बोल रहा हूं मैं? Listen carefully. पहले मेरे क्लास का नाम था पेरीमीटर. अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्लास का नाम तब्दील कर रहा हूँ. I'm changing the name of the class. Okay, so now the name of the class is perimeter 1. Is it clear? Yes, sir. ओके, नाउ आई वांट टू सेव दिस प्रोग्राम. ओके, सो सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली सेव एज में जाता हूं मैं, और सेव एज में देखूंगा तो इसका नाम मैंने ऑलरेडी पेरीमीटर डॉट जावा दिया हुआ है. ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे ही नाम रख देता हूं, जरूरत नहीं मुझे पेरीमीटर 1 करने की. मैं जैसा नाम था वैसे ही रखूंगा. ओके, आई सेव द प्रोग्राम. सेव करने के बाद मैं इसको चेक करता हूं कि क्या मैं पेरीमीटर 1 क्लास को रन कर पाऊंगा. सो मैं नॉर्मली, मेरा कन्वेंशन क्या है, what is the convention? I have to compile a program, so मैं compile करता हूँ. What is in compilation का step क्या है? I have to compile के लिए java c space what I need to give over here, the name of the file name or class name. What should be Class name. written over? Class name. It is Class name. the file name. Okay, remember it is not class name, it is file name that is to be passed over. For compilation I have to give the file name, because we do not, as a compiler, the compiler does not know what is the name of the class. Okay, so currently compiler को क्या करना है, फाइल को कंपाइल करना है, ना कि क्लास को. ओके, सो द कंपाइलर शुड बी नोइंग कि हाँ ये फाइल यहाँ पे है लोकेशन, और इसको कंपाइल करना है. आफ्टर वंस इट गेट्स कंपाइल्ड, इट आस्क फॉर द क्लास नेम. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फिलहाल के लिए, फाइल नेम. सो जावा सी स्पेस, द फाइल नेम इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? Perimeter. पेरीमीटर डॉट जावा मेरी फाइल नेम है. ओके, मैं इसको रन करता हूँ. मैं करने के बाद मेरा कंपाइल हो गया. ओके, फाइल हैज बीन क्रिएटेड. ओके, सो मैंने क्या बोला था आपको कि फाइल नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरा क्लास नेम अलग है, फाइल नेम अलग है. क्लास नेम कैसे अलग है? क्लास नेम में 1 है और फाइल नेम में 1 नहीं है, बट फिर भी कंपाइल हो गया. ओके, लेकिन ये मैं क्यों बोलता था तो क्लास नेम और फाइल नेम सेम होना चाहिए, अब वो आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा. व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या लिखते हो, जावा स्पेस, क्या लिखते हो यहाँ पे, क्लास नेम. यू राइट द क्लास नेम. ओके, बट बाय चांस अगर आपने यहाँ पे फाइल नेम ही रखा, लेट्स से आई विल बी यूजिंग पेरीमीटर ओनली. ओके, आई विल बी यूजिंग पेरीमीटर, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या बोलेगा. ओके, ये मेरे ख्याल से the perimeter of the rectangle, how come it is doing this? I'll be saving सर it. पेरीमीटर 1 आपने सेव नहीं किया था. Okay, I'll be saving it. Okay, then I'll be going to that file java c, and then I'll try to run this program by the name of perimeter. Again it is running.
What if I write Java 1? फिर भी रन हो रहा है। ओके उसका एक डॉट क्लास फाइल बना हुआ है। फाइन 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 फाइन। ये जो डॉट क्लास फाइल बना है वो पेरीमीटर का भी ऑलरेडी बना है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो डिलीट करना पड़ेगा पेरीमीटर वाला। ओके ये क्लास ऑलरेडी बना है। ओके सो इट इज रनिंग दैट कोड बेसिकली। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके नाउ आई विल डू व्हाट, अगेन आई विल कंपाइल द प्रोग्राम जावा सी पेरीमीटर डॉट जावा। कंपाइल हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए जावा पेरीमीटर में लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रन करने पे एरर दिखाया। क्या एरर दिखाया कि ऐसा पेरीमीटर नाम का कोई मेन क्लास नहीं है उसके अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन क्लास का को भी पेरीमीटर 1 बनाना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन है। या मुझे यहाँ पे रन करने के टाइम पे पेरीमीटर 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो मेरा आउटपुट आ जाता है। सो व्हाट बेनिफिट दैट यू गेट कि अगर फाइल नेम और क्लास नेम अगर आप सेम रखते हो, बेनिफिट दैट यू गेट इज यू डोंट हैव टू रिमेंबर 2 डिफरेंट नेम्स। अगर आप अलग नाम रखते हो फाइल का, और अगर क्लास मेन क्लास का नाम आप अलग रखते हो, ये दोनों नाम आपको साथ में याद रखना पड़ेगा। ओके दैट इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस दैट यू गेट, बिकॉज व्हाइल कंपाइलिंग इट, कंपाइलेशन के टाइम पे आप फाइल नेम देते हो, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इट यू हैव टू गिव द मेन क्लास नेम। तो अगर ये दोनों अलग होगा तो आपको दो नाम याद रखना पड़ेगा। ओके और अगर दोनों को सेम रखोगे, क्लास नेम और फाइल नेम का नाम, दोनों का नाम अगर सेम होगा तो आपको एक ही नाम याद रखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई द कन्वेंशन दैट जनरली यू फॉलो इज please keep the name of the file name as well as the name of the main class as similar. Is it clear? समझ में ये point? Is the Yes, point sir. clear? Yes, sir. Okay. So जो मकसद था आपको ये बताने का was that कि जब भी आप प्रोग्राम का नाम लिखते हो, ओके या क्लास का नाम आप डिफाइन करते हो, प्लीज ट्राई टू कीप इट बोथ द सेम नेम। ओके अगर आप अलग रख दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दो नाम याद रखना पड़ेगा। अभी दो नाम यहाँ पे क्या है, वन इज कॉल्ड एज पेरीमीटर क्योंकि वो फाइल का नाम है, और क्लास का नाम है पेरीमीटर 1। सो ये दोनों नाम मुझे याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बाई चांस कोई नाम भूल जाता हूँ तो या तो मैं कंपाइलेशन नहीं कर पाऊंगा अगर मैं फाइल का नाम भूल गया, या तो क्लास का नाम अगर मैं भूल गया तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। सो बेटर है कि दोनों नाम को, दो नाम रखने से अच्छा एक ही नाम में रखूंगा, सो वो ज्यादा बेटर होगा। सो मैं इसका नाम पेरीमीटर ही रख लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। ओके आई विल जस्ट गो टू दैट लोकेशन, आई विल जस्ट कंपाइल द प्रोग्राम अगेन। कंपाइल हो गया। अब मैं सिर्फ पेरीमीटर के नाम से इसको रन करता हूँ। रन किया और मेरा आउटपुट आ गया। सो एक ही नाम रखा मैंने फाइल का भी और क्लास का, तो मुझे एक ही नाम याद रखने की जरूरत है। Is it clear? Is the program clear to you? Yes, sir. Okay, so now can you write down the program for calculating the area of a circle Yes, sir. हो गया वो। on the same? Yes, हो sir. गया? हाँ कोई सर। मुझे शेयर करके दिखा सकता है how it has been done, how you're Yes, doing sir. it? Basically, I just want to see onto this thing कि आपको actually समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। Okay, so that is all I want to just see. Okay, so please share the screen. Whoever has done it, या does anybody has any doubt या compilation के टाइम पे किसी को दिक्कत आ रही समझने के लिए, so you can share your screen and you can ask me because it is a practical lab. So whatever I'll be teaching right now, मतलब ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो जवाब दे रहे हैं उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, so that is what I want to see your screen. Okay, so this is Shreya who is presenting right now. Okay, so you have written class area of circle. Okay, okay. So one thing that I want to say is जो आपने क्लास का नाम दिया है, okay, देखो यही यही फायदा होता है जब आप कुछ शेयर करते हो। okay, so जो श्रेया ने क्लास का नाम दिया है वो उन्होंने नाम लिखा है क्लास एरिया ऑफ सर्कल। फाइन, ओके। सो जस्ट रिमेम्बर दैट जब भी आप दो वर्ड या तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, द कन्वेंशन इज, इट इज नॉट रॉन्ग बेसिकली, बट कन्वेंशन क्या है, यानी जनरली जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं या जावा हमें फॉलो करने के लिए बोलता है, वो क्या बोलता है कि जब भी आप एक दूसरा वर्ड ऐड करोगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल के अंदर आपने ऑफ ऐड किया, सर्कल ऐड किया, व्हिच इज द सेकंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा दैट शुड बी रिटन इन कैपिटल। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल क्लास में एरिया का ए कैपिटल होगा, ऑफ का ओ कैपिटल होगा और सी का सी कैपिटल होगा। तो अगेन इट विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट, but it is a choice, it is a good practice of following a proper convention of writing a program. Okay, so that is what I want to say. So उन्होंने लिखा class area of circle, that is good. Then उन्होंने define किया public static void में
which is the main method, और उसके अंदर string args के पैरामीटर उन्होंने पास किया। देन उन्होंने वो मेन मेथड का को करली ब्रैकेट के अंदर उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने इंट आर लिया, उन्होंने इंट ए लिया, इंट एरिया लिया, और उसकी वैल्यू पास की इज इक्वल टू 3.14 into r into r। ओके, so that is the formula system.out.println the area of the circle is plus area। okay, good। can you execute the program, save it? You have changed the name of the class, so file name भी अगर आप चेंज करोगे तो बेटर होगा, नहीं तो वहां पे अभी फाइल नेम चेंज मत करो, आप सिर्फ सेव करो और इसको रन करो। तो कंपाइलेशन में Just प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं करो, आप करो, करके दिखाओ मुझे साथ में। जस्ट सेव द प्रोग्राम, जस्ट सेव इट। ओके, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, नो डोंट चेंज इट, डोंट चेंज इट। आई वांट टू टीच दैट स्टेप ओनली। इसको सिर्फ सेव करो, कंट्रोल प्लस एस, जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस एस। या फाइन, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, so go to the drive where you have saved it। okay, so you have saved in E drive। okay, okay, so you are currently in Shreya Java। fine, you want to execute the program, so compile करना है। compile करने के लिए क्या लिखोगे? Java C सर वो कंपाइलेशन में इधर पाथ का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो पाथ में क्या लिखा है आपने? दिखाओ तो सही, मुझे समझ में कैसे आएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया आपने श्रेया? क्या सर? एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया है आपने? सर वो सेट हुआ है वहाँ पे, पर वो दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करो ना, आप पाथ सेट कर लो वहीं पे, जस्ट राइट डाउन पाथ। किधर सर? वही कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे just write down dir, just write down dir। I want to see what are the content of the folder। dir, yeah, press enter। so there is a file called as area of circle। ठीक है, बराबर है, सेव हुआ है प्रोग्राम। अभी आप क्या करो, यहाँ पे लिखो path, write down path is equal to हाँ, अभी क्या करो, मिनिमाइज करो और सी ड्राइव में जाओ आपके, मिनिमाइज द फोल्डर या डायरेक्टली गो टू सी ड्राइव। हाँ, गो टू सी में, गो टू प्रोग्राम फाइल्स, गो टू जावा या गो टू जेआरई। क्यों है आपका जेडीके इंस्टॉल नहीं किया आपने? सर यही दिखा रहा था वहाँ पे, मैंने 2 बार इंस्टॉल किया, यही दिखा रहा है। नहीं, ये एरर आएगा फिर, बिकॉज यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड द जेडीके। बेसिकली अपने जेडीके श्रेया प्रोग्राम फाइल नहीं दो किया, है, डेवलपमेंट नहीं किया। दिस इज 2 प्रोग्राम फाइल्स है। दो है, चलेगा। देयर शुड, हाँ, तो एक हाँ, प्रोग्राम ऊपर वाले फाइल में 86 का है ना? सर इसमें नहीं दिखा रहा है कुछ भी जावा। नहीं, उसमें 86 में बेसिकली 32 वर्जन वाला जो भी आपका जावा सॉफ्टवेयर होता है ना, वो 86 में आता है। जो 64 वाला रहता है वो प्रोग्राम फाइल्स में आता है। तो जेडीके जो हमने 2 बार इंस्टॉल किया। नहीं, ये गलत है, ये नहीं है। आप एक काम करो, वापस आपके उसमें कंप्यूटर, ये इंटरनेट चालू है इस वक्त फिलहाल? इज इंटरनेट वर्किंग प्रॉपर्ली? यस सर। ओके, ओपन द गूगल क्रोम, ओपन द गूगल क्रोम। या ये वाला ना? हाँ, डोंट गो ऑन ओरेकल, डोंट गो ऑन ओरेकल, या चलेगा, या जस्ट राइट डाउन जावा ओवर देयर, जस्ट राइट डाउन जावा ओवर देयर, जावा डाउनलोड, राइट डाउन जावा डाउनलोड ओवर देयर। ओके, आई विल बी टीचिंग यू कैसे करना है। बाकी किसी और को प्रॉब्लम, किसी का रन हुआ है, कोई बता सकता है? सर मेरा रन हुआ, मेरा दिखा दूं? हाँ दिखाओ, एडविन दिखाओ अपनी। हाँ दिखाओ एडविन। श्रेया आप क्या करो, आप वहां पे जाओ, गूगल में जाओ, वहां पे जावा डाउनलोड करके सर्च करो। वहां पे जाने के बाद आपको एक जेडीके का फाइल मिलेगा। ओके, डाउनलोड द जेडीके फाइल, नॉट द जेआरई फाइल। ओके, जेडीके को डाउनलोड करना, आपने जेआरई को डाउनलोड किया है। जेआरई इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, सो ये एडमिन का स्क्रीन है। एडमिन ने लिखा क्लास एरिया, क्लास एरिया में पब्लिश स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एआर, उसके अंदर उसने एक आर करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है। सो आर, आई होप इट इज रेडियस, आई थिंक। Then we have he has created a data type called as double। double में pi value create किया है with 3.14। okay, good। then we have double area, double area is pi into r into r। okay, and then he has printed the value with the help of system.out.println area of circle is equal to plus area। very good।
सो अभी इसको सेव किया, इसको रन करो, कंपाइल करो। तो वो मैंने Okay. ऑलरेडी पाथ डाल दिया, अभी तो फिर से कंपाइल कर देता हूँ। ओके, सो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया है आपने एडमिन? हाँ। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं हुई ना आपको सेट करने में? नहीं नहीं। ओके फाइन। सो बेसिकली इनिशियली आपका कुछ एरर था, जैसे कि आप पहले एरर क्या क्या आ रहा था वैसे एडमिन? डेटा हाँ टाइप का वो एरर आ रहा था। 3 बार एरर आया था, वो मैंने क्या Okay. किया था, वो हाँ, पाइप को सो मैंने वो फ्लोट हाँ किया था। बराबर। सो अगर फ्लोट लिखोगे तो भी चलेगा, जस्ट राइट डाउन फ्लोट ओवर दे चलो पाई की जगह पे। फ्लोट में ऐसे एरर आया था, उसमें से जाना। हाँ करो ना, मैं फ्लोट बता में रहा भी हूँ। एरर आ रहा है। हाँ मैं इधर ही हूँ ना, बैठा इसीलिए हूँ ना आपका एरर सॉल्व करने के लिए। सो जस्ट राइट डाउन फ्लोट ओवर देयर एडमिन, फ्लोट पाई इज इक्वल टू एफ लिखना 3.14। पड़ता है ना हाँ फ्लोट में एंड में लास्ट। 3.14 के आगे एफ लिख दो। 3.14 के आगे एफ लिखो, पाई 3.14 राइट, नहीं कंटिन्यू में डोंट लीव एनी स्पेस। या राइट डाउन एफ ओवर देयर, स्मॉल एफ, नहीं जस्ट एफ, या एफ, स्मॉल एफ। सर और हाँ वहाँ पे एफ लिखो, स्मॉल एफ लिखो। सर और एक बार बोलो। हाँ वही अरे एफ लिखो 3.14, ना। खाली एफ लिखो एडविन, 3.14 के आगे सेव बस एफ। हाँ बस सेव करो अभी, या सेव दी प्रोग्राम। कर दिया। हाँ अभी वापस कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, राइट डाउन जावा सी या एरिया डॉट जावा। हाँ वो कंपाइल हो गया। क्यों गड़बड़ हो रही थी? बिकॉज आपने वहाँ पे एफ नहीं लिखा था। ओके, सो आपकी वो वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? यस सर। ओके गुड वेरी गुड फाइन। और कोई प्रोग्राम दिखा सकता है? अभी जैसे इसमें हमने क्या सीखा कि फ्लोट का जो गड़बड़ थी वो आपसे नहीं हो पा रहा था, वो आपने सीख लिया। श्रेया से हमने क्या सीखा, उसने जेडीके ही गलत इंस्टॉल किया था। ओके, सो बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ शेयर करोगे तो वो बाकी लोग को भी सीखने मिलेगा। सो प्लीज इफ एनीबडी हैज रन द प्रोग्राम, प्लीज शेयर मी your screen. It would be a good thing so that everybody can understand, everybody can learn from your mistake. Anybody else want to come forward? किसी का प्रोग्राम रन हो गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो विवेक। कौन बोल रहा है? विवेक बोल रहा है? कौन बोल रहा है? Who is speaking? सर हाँ मेरे अनस अली, मोबाइल में अनस अली। प्रोग्राम हाँ हाँ बोलो अनस अली। मैंने मोबाइल का ये पेरीमीटर का जो अभी आपने किया ना, हाँ हाँ पेरीमीटर का प्रोग्राम, तो मोबाइल में मैंने टाइप किया तो पर मुझे एरर आ रहा है सर। मैं बताओ। हाँ दिखाओ ना, स्क्रीन शेयर करो ना मुझे। ओके सर। हम्म, ओके सर मुझे ये एरर आ रहा है ऐसा। ओके ओके ठीक है। अभी आप कोड पे जाओ, मुझे कोड दिखाओ। ओके सो मेन क्लास पेरीमीटर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args बराबर है इंट लेंथ 10 ब्रेथ लिया, इंट पेरीमीटर लेंथ इज इक्वल टू ये सिस्टम का एस स्मॉल सिस्टम का में एस, डाला है। बराबर सिस्टम का सिस्टम एस। डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस कैपिटल करो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है ना आपका, जी सर। सर उसने एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा दिया है। कर्ली ब्रेसेस पैरेंट। एक पैरामीटर। हाँ पब्लिक क्लास के बाद स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो है ना, क्लास के बाद एक पैरामीटर डालो। क्लास पेरीमीटर जो लिखा है पहली लाइन पे आपका, ये उधर एंटर करो। क्लास पेरीमीटर के बाद एक एंटर करो और वहां पे एक ब्रैकेट डालो। अनस सुनाई दे रहा है आपको? I think you have got a network problem, I think. So what is the mistake that you are doing is just listen if you are able to listen to me. आपने क्लास पैरामीटर जो आपने क्रिएट किया है, क्लास का डेफिनेशन शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द कर्ली ब्रैकेट। सो आपने क्लास पैरामीटर का कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है, एक गलती वो किया है। दूसरा गलती ये किया है कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है आपका, वो सिस्टम का एस इज स्मॉल। सो वहां पे एक एरर है। सो दो एरर है आपका, ये दो एरर को सॉल्व करो, मेरे ख्याल से आपका आंसर बराबर आएगा। ओके सर। Fine? ओके Okay, हाँ ये so do that. Okay. Next, anybody else can share this screen? समझ में आ सर गया बाकी लोग को?
कौन है ये हु इज स्पीकिंग? सर श्रेया। सर ये जावा का ओके जो ओके फोल्डर है उसमें जेआर ही बता रहा है, हाँ बट डाउनलोड्स में गई ना तो वहां पे जेडीके बता रहा है। दिखाओ मुझे। ओके वेट। Does anybody is still facing that problem? JRE या JDK या सबके उसमें JDK है? Everybody has got the JDK? Yes, sir. Okay. जावा So में this is जेआर ही currently बता रहा Java है, में. हाँ बट डाउनलोड्स में जेडीके शो इन फोल्डर किया। हाँ तो इसको रन करो ना, उसको रन करो, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट। हाँ उस पर डबल क्लिक करो। या नेक्स्ट नेक्स्ट। या इट विल टेक सम टाइम। ये होने के बाद आप चेक कर लेना, आप प्रोग्राम फाइल्स में जाना, जावा में जाना, तो ऑलरेडी एक तो जेआरई रहेगा वहां पे क्योंकि आपने उसको अनइंस्टॉल नहीं किया है, ओके लेकिन एक जेडीके क्रिएट हो जाएगा 14 वर्जन। देयर वुड बी अ फाइल व्हिच इज बीन क्रिएटेड कॉल्ड एज जेडीके। ओके सो आई यस। थिंक बाकी लोग का डाउट सॉल्व हो गया होगा आप लोगों की वजह से। सो दोज हु हैव वॉलंटियर्ड टू कम फॉरवर्ड, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओके ऐसे ही अगली बार मैं कुछ और बंदों को चाहता हूँ जो आप आगे आकर के अपने प्रोग्राम को शेयर करोगे। हाँ कौन बोल रहा है? सिद्धि? हाँ हाँ बोलो सिद्धि। मेरा भी एक एरर आ रहा है। हाँ तो स्क्रीन शेयर करो प्लीज। हाँ नो बेटर ये होगा कि जो आप, अच्छा आप मोबाइल से यूज कर रहे हो क्या? हाँ सर। ओके अभी कैसे दिखेगा वो, मेरे को दिखेगा नहीं। वन सेकेंड। क्या सर? इट इज लाइक पूरा टिल्टेड है। ओके आप मतलब मैं गर्दन टेढ़ी करनी पड़ रही है मेरे को बेसिकली, एंड इट दैट कैमरा इज आल्सो नॉट प्रॉपर, दैट इज नॉट विजिबल। ओके हाँ मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है अभी। सो यू हैव क्रिएटेड क्लास एरिया पब्लिश स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args। ओके देन इंट आर क्रिएट किया है। थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेना कैमरा को, सो दैट लेफ्ट 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 या लेफ्ट या बेटर है, बेटर है। ओके सो फ्लोट a इक्वल टू a 3.5 600 बराबर है। प्रोग्राम बराबर है। क्या एरर दिखा रहा है? जस्ट शो मी द एरर। ओके पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। ओके सो बेसिकली डेटा टाइप में प्रॉब्लम है। ओके एक बार वापस प्रोग्राम दिखाना, जस्ट शो मी द प्रोग्राम अगेन, शो मी द प्रोग्राम। ओके सो प्रोग्राम में आपने डेटा टाइप कौन सा यूज किया है? यू हैव क्रिएटेड अ फ्लोट एरिया। फ्लोट का एफ नहीं है। हाँ वन सेकेंड। हाँ जो 3.14 आपने डिफाइन किया है ना, वो 3.14 के आगे एक एफ डाल दो वहां पे, स्मॉल एफ। सेव द प्रोग्राम, कंपाइल इट अगेन एंड रन इट हाँ again. Okay so I think it would be better. Okay okay थैंक यू सर। yeah sure. So that is how we write the program. Next program क्या करना है, अभी हमारे पास टाइम तो फिलहाल कम है, लेकिन फटाफट हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कल का कुछ अनाउंसमेंट हुआ है कि कल क्लास है कि नहीं, बिकॉज आई थिंक कल तो बकरीद है ना। Yes, sir. बट सर Eid Mubarak. हाँ थैंक यू। बट मेरे ख्याल से कल बकरीद है तो क्लास छुट्टी है। लेक्चर है, क्योंकि अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। इवन आई हैव सेंड द मैसेज टू एचओडी सर रिगार्डिंग दिस, बट देखते हैं क्या है। अभी तक फिलहाल कॉलेज ने क्या बोला है कि नहीं। एंड इवन रक्षाबंधन है मेरे ख्याल से मंडे, सो सैटरडे को Yes, sir. लेक्चर है कि नहीं Holiday. या सो दैट इज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉलेज। आई थिंक मेरे ख्याल से दोपहर तक या शाम तक एक अपडेट आना चाहिए रिगार्डिंग दिस, देखते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से सैटरडे एंड मंडे, मोस्ट प्रोबेबली, ओके आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, बट सैटरडे एंड मंडे शायद मुझे लगता है कॉलेज नहीं होगा। सो मे बी अगली क्लास में फिर से हमें जावा ही स्टार्ट करना पड़ेगा, डीबीएमएस का 2 लेक्चर हमारा मिस आउट हो जाएगा। ओके
सो अभी फिलहाल हमारे पास 10 मिनट बचा है। 10 मिनट में मैं आपको मेथड कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेम जो मैंने पेरीमीटर का प्रोग्राम लिखा था, द सेम पेरीमीटर प्रोग्राम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेथड एज वेल। सो मेथड क्या होता है, जैसे मेन एक मेथड है, ओके, मेन इज अ मेथड, ओके। सिमिलरली आई विल बी क्रिएटिंग अ मेथड कॉल्ड एज पेरी, ओके, पेरी नाम का एक मेथड बना देता हूँ, ओके। सो ये जो पेरी मेथड है, ओके, ये पेरी मेथड विल कैलकुलेट माय पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके। सो मैं इसको रिटर्न टाइप दे देता हूँ, लेट्स से पेरीमीटर Sir, का, हाँ, screen is not visible. सर ओके स्क्रीन विजिबल नहीं ओके है। ओके ओके। सो आई विल शेयर द स्क्रीन। इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. ओके। सो क्लास पेरीमीटर में जो मेरा बाकी प्रोग्राम था मैंने उसको डिलीट कर दिया, ओके। आई एम क्रिएटिंग अ मेथड, आई एम यूजिंग अ मेथड। मेथड को यूज करने का फायदा क्या होता है कि आपने जो कोड लिखा है ना उसका रीयूजेबिलिटी, अगर कहीं पे भी अगर आप उस मेथड को कॉल करना चाहो बड़े आसानी से उसको कॉल कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड, द सेम कोड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो वो बेटर ये होगा कि आप इसका एक मेथड बना के रख लो और वो मेथड को कोई भी कभी भी कॉल कर सकता है, ओके। सो दैट इज एडवांटेज ऑफ मेथड। सो इट क्रिएट्स अ मॉड्यूलैरिटी, ओके, आपको एक मॉड्यूलर इफेक्ट देता है, ओके। सो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी अगर आपको चेंज करना है तो उतने कोड में आप चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसको कोई भी आसानी से यूज कर लेगा। सो कोई भी मेथड जब भी आप क्रिएट करते हो, ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन अ थियरी पार्ट ओवर हियर थोड़ा बहुत। सो व्हेनेवर यू क्रिएट अ मेथड, मेथड का जो डेफिनेशन जो आपको बताना होता है, सबसे पहले आपको एक रिटर्न टाइप देना पड़ता है, ओके। सो मेथड शुड रिटर्न एनी वैल्यू, ओके। सो देयर शुड बी अ रिटर्न टाइप। सो रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप इज नथिंग बट द डिफरेंट डेटा टाइप दैट आई हैव। उसके अलावा अगर मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा तो इट वुड बी कॉल्ड एज वॉइड। सो सबसे पहले मैं कोई भी मेथड का एक रिटर्न टाइप मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद आई हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द मेथड, ओके। सो मेथड नेम मुझे देना पड़ेगा। The convention of naming a method is, मेथड को हमेशा आप स्टार्ट करते हो स्मॉल लेटर, ओके। क्लास को हमेशा आप कैपिटल से करते हो बट मेथड को हमेशा आप स्मॉल लेटर से करते हो। सो रिटर्न टाइप हो गया, मेथड नेम हो गया, और उसके बाद आप पैरेंथेसिस में you put a parenthesis and within parenthesis you pass the set of parameters you have, okay। so वो parameter का मतलब क्या कि किस पैरामीटर पे आपका ये फंक्शन काम कर रहा है। अगर ये मेथड समझना है आपको कि मेथड होता क्या है, तो इट इज जस्ट लाइक अगर आप रिमोट कंट्रोल, जो आपके घर में टीवी को कंट्रोल करने के लिए जो रिमोट होता है उसमें जो डिफरेंट बटन्स होती है, दैट बटन इज नथिंग बट अ मेथड, ओके। सो ओवरऑल वो पूरा का पूरा जो रिमोट है वो एक क्लास हो गया और उसके अंदर छोटे 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 बटन्स हैं। वो बटन्स पे जो भी आप प्रेस करते हो उसका जो फंक्शनैलिटी होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ओके। सिमिलरली ओवर हियर इन दिस प्रोग्राम आई एम क्रिएटिंग अ मेथड। मैं एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ एक रिमोट पे, ओके। सो रिमोट का नाम है पेरीमीटर एंड मैं इस पे एक छोटा सा बटन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा पेरी। उस बटन पे क्लिक करते ही मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ अ या पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मुझे कैलकुलेट करके मिलेगा, ओके। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो इससे एडवांटेज क्या होगा? अगर मुझे ये बटन, मतलब समझ लो कोई और 10 बटन मैंने प्रेस किया, बाकी सब रन कर लिया मैंने, अचानक से मुझे फिर से पेरीमीटर की जरूरत है तो मैं फिर से बटन पे प्रेस करूंगा, जैसे बटन पे प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो दैट इज एन एनालॉजी, ये एक तरीका है समझाने का। सो एक्चुअली में आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी रिमोट, ओके, बट समहाउ अगर आप रिमोट का एग्जांपल समझ लोगे तो ज्यादा बेटर होगा आपको मेथड को समझने के लिए। सो आई एम क्रिएटिंग अ बटन ऑन अ रिमोट, ओके। सो ये एक एनालॉजी। सो कैसे क्रिएट करते हैं? तो आई हैव टू गिव अ रिटर्न टाइप, I have to give a method name and then I have to give a parenthesis। ये parenthesis के अंदर मुझे पैरामीटर देना है, अगर नहीं देना है तो मैं इसको खाली रखूंगा, अगर देना है तो मैं इसके अंदर int a int b ऐसे करके मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ जो कि यूज करेगा वो फंक्शन इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ओके। सो दिस इज हाउ आई क्रिएट इट। सो अभी मैं पेरीमीटर का नाम करके एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। सो ये मेथड को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे डेटा टाइप, उसका रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। सो रिटर्न टाइप में बेसिकली आई विल बी प्रोवाइडिंग नथिंग, मैं आउटपुट कुछ नहीं दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ मैं आउटपुट। सो आई विल बी राइटिंग एज void, void is my return type, then I have to give the name of the method। so name of the method is, what is the name of the method that I've created? Name of the method is पेरी।
ओके, द नेम ऑफ द मेथड इज पेरी. ओके, सो ये पेरी है और उसके बाद फिर पैरामीटर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ. सो करेंटली आई एम नॉट पासिंग एनी पैरामीटर. सो दैट इज हाउ आई डिक्लेयर्ड अ मेथड. मैंने मेथड को डिक्लेयर किया. अब मुझे उसको डिफाइन करना है कि उसके अंदर क्या क्या है. सो व्हाटएवर जो डेफिनेशन होगा मेथड का, दैट शुड बी रिटन डाउन इन कर्ली ब्रैकेट. वो सब कुछ कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा. सो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए मुझे लगेगा लेंथ. ओके, सो आई रिक्वायर अ लेंथ. मैं लेंथ की वैल्यू दे देता हूँ 10. देन आई वुड रिक्वायर अ ब्रेड. सो ब्रेड मैं दे देता हूँ और उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 20 semicolon, and then I will just print it. So system या एक और एरिया ले लेता हूँ, पेरीमीटर ले लेता हूँ. सो पेरीमीटर और इसकी जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ लेंथ या ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस, ओके, सेमीकोलन. देन आई विल जस्ट प्रिंट इट. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करता हूँ या इसकी पेरीमीटर की वैल्यू डाल देता हूँ. पेरीमीटर इज प्लस पेरीमीटर. ओके, और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ. समझ में आ गया प्रोग्राम? इसी प्रोग्राम क्रिएट यू. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैंने एक मेथड लिखा, एक बटन मैंने लिख बनाया. ओके, ये बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ओके, टिल नाउ आई हैव नॉट क्लिक्ड ऑन इट. ओके, आई हैव क्रिएटेड अ बटन बट आई हैव नॉट क्लिक ऑन इट. क्लिक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये क्लास के अंदर ये मेथड को कॉल करना पड़ेगा. सो ये क्लास के अंदर ये मेथड डिफाइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ओके, सो ये सब क्या है ये थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आपको एलॉबरेट करने की कोशिश करूंगा. अभी मैं फिलहाल बताता हूँ ये होता कैसे है. So I have to create an object of this class. So in order to create an object of a class, there is again a syntax. So first I need to write down the class name. So the class name is perimeter. Then I have to create the object. So object का नाम I am calling it as P. So perimeter P is equal to new is a keyword again, and then again the class name. So class name is perimeter. Okay, so ये क्या है ये आपको अगली क्लास में ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन द सेम प्रोग्राम, इसको दूसरे तरीके से. ओके, सो इट विल गिव यू अ मॉड्यूलैरिटी. सो ये मैंने पूरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया. अब मुझे उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आई हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन कॉल्ड एज पेरीमीटर. यानी पेरीमीटर बटन को मैं क्लिक करूंगा और उस फंक्शन को इन्वोक करूंगा. तो क्लिक करने के लिए आई विल बी यूजिंग p डॉट पेरी. So P is nothing but it is like a user who is currently using the remote control. Okay, so I have to create an object who will be using your class. Okay, so P dot Perry मैंने call किया तो automatically it would execute whatever is being written down in the Perry method. Okay, I will save the program. Sorry, last का ये line is not required. I will just save it. Okay, so the name of the class is perimeter. So yeah, it has been already been created. So मैं इसको perimeter 2 के नाम से सेव करता हूँ. I'll just go to file. I'll just go to save as. यहाँ पे perimeter 2 डालता हूँ और dot java डालता हूँ. Okay, I'll be saving the program. Save कर लिया. I will go to command prompt. Within command prompt, I will write down what is the first thing that I write down. Java C. I will compile it. So Java C space the name of the program is perimeter dot 2. Okay, so I've got perimeter 2.java. I'll press enter. So yeah, I have not entered a semicolon. I think I've missed out somewhere. So कहाँ पे miss किया? यहाँ पे. I've missed a semicolon over here. I'll again save it. I'll go back to the command prompt. Okay, 2 into नहीं लिखा मैंने. I just have written 2 bracket 2 into. I'll again save it. और कुछ गड़बड़. Okay, I'll just try to compile it again. Perimeter. Okay, save नहीं हुआ क्या? Just go to file, save it. Perimeter. Am I missing something?
static coordinate string args. I'm creating the So variable क्लास p.query, नेम चेंज p.query. हुआ तो पब्लिक में भी चेंज होगा क्या? पब्लिक में अच्छा ओके. सो मैंने क्लास का नाम यहाँ पे पेरीमीटर 2 डाला था और यहाँ पे पेरीमीटर ही लिखा. सो पेरीमीटर 2 p is equal to new perimeter 2. ओके, सो दिस इज द क्लास नेम. यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, बाकी सेम होगा. ओके फाइन. सो आई विल गो टू द कंपाइलेशन. आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. हाँ, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. अब मुझे इसको रन करना है. सो रन में जावा स्पेस पेरीमीटर 2. ओके, एंड आई विल एग्जीक्यूट इट. सो आउटपुट मेरा आया पेरीमीटर इज 60. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? एडवांटेज क्या है कि जब भी मैं पेरी को कॉल करूंगा वो बटन का वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे दे देगा. अगर मान लो मैं यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ. आई नो आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, थोड़ी देर लगेगा बस. आई एम टेकिंग 2 पैरामीटर इंट ए और इंट बी, और ये ए और बी जो है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ. और जो भी बटन में जो भी वैल्यू आप डालोगे, जो भी लेंथ और ब्रेड्थ पास करोगे, वो ऑटोमेटिकली लेंथ और ब्रेड्थ को चले जाएगा. ओके, सो जब मैं अब इसके अंदर बटन के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ 5, 10. ओके, समझ में आया? सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पैरामीटर दैट आई वांट टू क्रिएट? व्हाट वुड बी द लेंथ? द लेंथ वुड बी 5. 5 and the breadth would be 10. Okay, so that using this now it would be calculating it. Okay, so I'll compile it again. I will run it. So मेरा आउटपुट 30 आया. Okay, अभी मेरे को मान लो वही यूजर अब कोई अलग वैल्यू पास कर रहे हैं. ओके, सो p dot query अब मैं पास कर रहा हूँ. instead of 5 10 I'll be passing 10, 20. Okay, semicolon. I'll save it. I will try to compile it again. Java C, Java. So it is calling again the function again. ओके, सो वापस से बुलाया तो क्या, अगर आप ये फंक्शन नहीं लिखा होता आपने तो ये जो 4 लाइन का कोड है ये फिर से आपको लिखना पड़ता. बट यहाँ पे आपने सिर्फ 1 लाइन का कोड लिखा है और वो कोड रीयूज हो गया. फिर से मुझे कॉल करना है तो मैं फिर से लिखूंगा p डॉट query. ओके, और इस टाइम पे मैं मान लो मैं 30,50 लिख देता हूँ. ओके, आई एम पासिंग द वैल्यू 30,50. तो 30,50 यानी 3 लाइन में मैंने 3 वैल्यू कैलकुलेट कर दिया और मेरा जो लॉजिक था वो सिर्फ 4 लाइन का था. ओके, क्या हुआ यार, सेव क्यों नहीं हो रहा है? p dot query. I've got 3 different values. समझ में आया? Is it clear? So the advantage of using method is basically कि मेथड यूज करने से आपका जो कोड रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाता है. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ मेथड. ये मेथड 4 लाइन का ही मेथड था. ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 4 लाइन कोड एवरी टाइम व्हेनेवर आई रिक्वायर इट, व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एवरी टाइम आई विल राइट डाउन इन मेथड. सो व्हेनेवर आई रिक्वायर दैट मेथड आई विल जस्ट click on that method. I will just call that method. So it is just like a button which is there on your remote. So whenever it is required, whenever you want to play, let's say आपको NDTV इंडिया प्रेस करना है तो आप बटन नंबर 317 पे प्रेस करते हो. ओके, सो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू एयरटेल के रिमोट पे 317 पे यू विल बी व्यूइंग द NDTV इंडिया. ओके, सो इट इज जस्ट लाइक दैट. ओके, सो आप जो बटन पे प्रेस करोगे उसका जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शन रहेगा वो वापस रिक्रिएट होता है या वापस से वो कॉल हो जाता है. तो यू डोंट हैव टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन व्हिच विल बी ह्यूज. ओके, सो अगर मैंने आपका बोला कि आपको एक एवरेज ऑफ आपके मार्क्स को कैलकुलेट करना है. ओके, सो ये एवरेज ऑफ मार्क्स हर एक बच्चे का अलग अलग होगा. तो हम हर एक के लिए फिर से बार बार 5-5 लाइन का कोड लिखेंगे तो इट वुड बी ह्यूज, राइट? सो बेटर ये होगा कि मैं एक ही फंक्शन क्रिएट करूं और हर एक बच्चा अपना उसमें मार्क्स डालते चले जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, इसके ऊपर और इलैबोरेट नेक्स्ट क्लास में ज्यादा बेटर से इसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. सो दोज हु हैव डाउट कैन remain over here, can ask me the doubt. Those who have no doubt, okay, कैसे करना है यार, environment variable कैसे set करना है, क्या करना है, they can leave. Thank you guys, enjoy your holidays if there is a holiday. Okay, by the way, if there is a holiday, do enjoy it. And those who are celebrating Eid, happy Eid to all. And those who are celebrating the Raksha Bandhan, happy Raksha Bandhan to all. Thank you, sir. Yeah, sure.